Okay, good morning and welcome back. Okay, so there are a lot of ecos. What echo can we stop? Some people have their audio still on. Some people in the waiting room. Let me admit them first. Tomorrow being the first CPT, I hope that you will have some kind of a thrilling and new experience. And paper won't be very tough, of course. This being the first paper, but it's a CPT, so like and the first time, and it will be interesting because I don't think you would have appeared for any paper. I don't think that you would have appeared for any paper of this type. So that way it would be first time in your life kind of an experience. है ना? घर में बैठे बैठे टेस्ट देना. I don't think you had ever visualized that. और वो भी स्कूल में live video में present रहना, है ना? So it will be a nice experience actually for everyone, including us. ठीक है ना? चलो हमने तो फिर भी क्लास 12 का तो थोड़ा बहुत कर दिया है ऑलरेडी, है ना? क्लास 12 का तो ऑलरेडी कर दिया स्टार्ट, तो लाइक 4 टेस्ट शायद हो गया, 3 या 4 टेस्ट हो चुके हैं. So now it's almost like a routine now. ठीक है ना? You will also feel the same thing after 1 or 2 tests. फिर वो routine लगने लगे. But कल के लिए थोड़ा सा I'm sure थोड़ा excitement होगा, थोड़ा curiosity होगा, थोड़ा apprehension भी होगा शायद, apprehension. But ठीक है, these are all part of life. In fact, कई बार हम लोग कहते हैं कि other than your academic knowledge and your degree, qualifications, certificate, prizes, and awards and all, ये तो life का एक part है. No doubt, that plays a good role, that plays a positive role, inspire करता है, motivate करता है ना? Plus आगे बढ़ने का एक शक्ति देता है ना? Even when the times are slightly down or maybe the environment is slightly down, जैसे आजकल थोड़ा सा depressing atmosphere चारों तरफ, है ना? रोज इतने मर गए, इतने अफेक्टेड हो गए, इतने हॉस्पिटल में पहुंच गए, ये हो गया, लॉकडाउन बंद है, तो थोड़ा सा माहौल नेगेटिव है. In all those tough and slightly negative times, these are things which motivate us कि नहीं यार उसमें टेस्ट में मैं टॉपर बना था, like मुझे टॉपर बन के रहना है. या if you are the second or maybe you are the third or a little behind, नहीं यार ये तो मेरे टेस्ट में हमेशा पीछे रहता था, ये कैसे आगे चला गया, मुझे अगले टेस्ट में जो है ठीक से करना है. So those are things that actually motivates it, so motivating him. So that is a plus part. But other than that, we also need life skills, है ना? Life skills में आता है, one of them is of course communication skills. The other is interaction skills. देखो कई बार देखना कुछ लोग ना जैसे ही थोड़ा सा डायलॉग वगैरह स्टार्ट होता है तो लड़ाई झगड़े में चला जाता है. कई लोग होते हैं. I'm not pinpointing anybody, क्योंकि उनका टेम्पर है ये. अब वो टेम्पर डाउन करने का कोई दवाई तो है नहीं कि दवाई दे दिया उसका टेम्पर हमेशा कूल रहेगा, ऐसा होता नहीं. यू टू लर्न दीस थिंग्स कि कैसे उस वक्त अपने को कंट्रोल करना होता है, या कैसे एडवर्सिटी के अगेंस्ट अपने आप को घबराहट से रिएक्शन ना करके हिम्मत से रिएक्शन करना होता है. तो ये सब जो छोटे छोटे स्किल्स होता है, दे कैन नॉट कम बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और फॉर दैट मैटर इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट. Those are things that we have to learn over a period of time with our environment, है ना? तो वो चीज हम लोग जरूर मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, because that is not possible. You are all at secluded at home. But other than that, I think things are more or less complete. We are discussing the same topics. We are having classes regularly. You are also attending that, and I'm sure you're solving questions also parallelly. Things are all on. And in that context, अगर देखें तो एक आध टेस्ट हो जाता है तो then you also become alerted. You become active, है ना? So it's all positive. Don't take it negative. ठीक है? One message has come, and that is, will the test be very difficult? सुनो एक चीज समझो, टेस्ट इजी हो या डिफिकल्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल you should be cool. There's a reason. There are 2 types of tests. I mean, there are many types of tests actually, but हमारे कंटेक्स्ट में 2 के ही बात करो. एक होता है जिसमें मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जैसे बोर्ड टाइप के पेपर्स हो,
तो उसमें तुम्हारा मार्क्स 95 है या नहीं, 97 है या नहीं, 96 है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट। और एक होता है जिसमें रैंक इंपॉर्टेंट, परसेंटेज का कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। जैसे लास्ट ईयर भी कोई एक आध दो स्टूडेंट्स थे हमारे जो 60% पे, 60 या 62% पे मार्क्स में आता है, 62%, कहाँ 62, 92 की बात नहीं करता, 62% पे आज IIT में बैठे। ठीक है, थोड़ा पीछे के IIT में भी थोड़ा कोर्स में या स्ट्रीम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर, बट ठीक है, एटलीस्ट IIT में तो बैठे हैं एट जस्ट अराउंड 60% और 62%। तो देयरफॉर कुछ में परसेंटेज मैटर करता है, कुछ में रैंक। तो अभी फिलहाल जो तुम लोगों का टेस्ट होगा CPT, दे आर रैंक बेस्ड। रैंक बेस्ड इन द सेंस, डोंट लुक एट कि मेरा 70% करेक्ट है, हार्डली मैटर। अगर मान लो तुम्हारे 70 है और हर एक का 70 से ऊपर है तो तुम्हारा 70 वाला बेकार। लेकिन साथ में ये भी सोचो, मान लो तुम्हारे 70 है, दो जने का 70 से ऊपर है, बाकी सबका 70% से नीचे है, so your 70% is actually amongst the top। है या नहीं? Therefore look at it from that dispassionate point of view। I will repeat, dispassionate point of view, कि इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए टेस्ट की तरफ। टेस्ट के लिए एक डिटैचमेंट होना चाहिए कि चलो ठीक है, आई विल गिव माय बेस्ट, लेट्स गिव द रेस्ट। ठीक है ना? तो विद दैट स्पिरिट गिव द टेस्ट अगेन। चलो ठीक है, मीनवाइल कुछ मैसेज आया। हर्षित सेज गुड मॉर्निंग बेटे। स्नेह सेज विल रिवर बोट कम। मैंने पहले मना किया था कि लाइक रिवर बोट तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। उस समय तो हमने किया नहीं था, तो कल ही किया है। रिवर बोट अभी इनकम्प्लीट है बाय द वे, रिवर बोट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा घंटा और लगेगा। तो और फिर रेनमैन, हाँ बेटे, रेनमैन वाले क्वेश्चन आएंगे? नहीं, वो थोड़ा सा एक एग्जांपल मैंने बताया था इसलिए कि एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल बहुत कम। अदरवाइज वो जो टॉपिक है ना रेनमैन, अभी वो भी इनकम्प्लीट, उस पे और डिस्कशन बचा है। आई वाज जस्ट वांटिंग टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन इन सम प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट। जैसे एडिशन का ना तुरंत हम पकड़ लेते कि कोई चेयर इधर खींच रहा है, कोई चेयर इधर खींच रहा है, तो चेयर ना इधर जाएगा, चेयर ना उधर जाएगा, चेयर बीच में, तो एक रिजल्टेंट का सेंस आता है। तो एडिशन को थोड़ा सा हम फील ज्यादा कर पाते हैं या नहीं? तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स कम होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, ये एक एग्जांपल थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन वी विल डिस्कस द टॉपिक अगेन, वी विल हैव अनदर डिस्कशन, राउंड ऑफ डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। सो मैं आस्क्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अभी पूरे 11th में कहीं हम लोग यूज नहीं, 12th में एक आध जगह है, बट दैट वी विल सी लेटर ऑन। और तब तक वैसे भी one mark 20 question, 2 marks, total 50 marks। Just a second. थोड़ा सा अटक रहा है शायद, या काफी दिन ये सब बोनस आया नहीं था, आज सडनली आ रहा है। नेटवर्क तो फाइन दिखा रहा है।
बैंडविड्थ लो आ रहा है, जस्ट नेटवर्क तो मैंने वही ऑन कर रखा। अब आई थिंक शायद ठीक आ रहा है। आई होप नाउ इट्स ओके हमें। चलो ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड हमें। कभी कभी थोड़ा सा आ जाता है, नेटवर्क के कुछ इश्यूज आ जाता है, क्या करें। हाँ, तो देयर वाज अ क्वेरी ऑफ, ठीक है ना। Just a second. इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इट सीम्स। एक मिनट, इस पे चार्ज भी कम। हाँ, गर्व ने भेजे थे कुछ क्वेश्चन वेक्टर के थे शायद। अब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसमें। डिफरेंशिएशन का था। आंसर हो गया। हाँ, वेक्टर का 7। ठीक है। एक तो ना कोलिनियर के ऊपर कईयों ने क्वेश्चन वो किया। तो कोलिनियर का तो मैंने बताया था वैसे, बट इसमें एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, दैट इज जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे ए हो गया, ए वेक्टर हो गया, और मान लो ये बी वेक्टर हो गया, और कुछ एक सी वेक्टर भी मान लो, ठीक है। दे आर ऑल पिन टू द ओरिजिन हमें, एंड इट इज आस्किंग टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, ठीक है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो ये वाला वेक्टर। जैसे ए को पलट दो, तो ये तो ए वेक्टर हो गया, ए को पलट दो, है ना। इन दैट केस क्या होगा, दिस वेक्टर इज बी माइनस ए, ठीक है। ये हो गया बी माइनस ए वेक्टर। और क्या, सपोज ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इसको भी ज्वाइन कर लो। बस, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर तो ये है, और ये सी वेक्टर है, लेकिन हमें माइनस सी चाहिए, तो माइनस सी प्लस ए, ये हो गया ये वाला, तो यानी ये हो जाएगा ए माइनस सी वेक्टर। यानी the tip of A vector, B vector and C vector are collinear. So the tips of A vector and C vector, A vector, B vector and C vector are collinear. तो collinear का condition क्या हो गया,
कोलिनियर का कंडीशन ये हो गया दैट B minus A vector should be some multiple of A minus C vector. देखो अच्छे से, तो ये हो गया कंडीशन फॉर, ठीक है ना, ये हो गया कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ठीक है, कि ये जो तीन वेक्टर्स के जो टिप है ये तीनों कोलिनियर होंगे अगर ये वैलिड है तो, दैट इज B minus A vector is equal to M into some multiple of some M must be existing and that's the case। और नहीं तो कई बार ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इनके यूनिट वेक्टर को कर लो, तो देयर इज अनदर वे ऑफ दैट कि उनके यूनिट वेक्टर्स जो है प्लस माइनस में होने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा क्या समेशन है ना, सी कैसे है ना, तो देयरफॉर इनके यूनिट वेक्टर्स जो है सेम आने चाहिए या प्लस माइनस में आना चाहिए, दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो मेरे ख्याल से जो कोलिनियर सोम हैज आल्सो आस्क्ड द सेम थिंग, इज दैट कोलिनियर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो नाउ जस्ट अप्लाई दिस यार्डस्टिक, देखना कोलिनियर के ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कई बार पूछते हैं चार वेक्टर कोलिनियर, तो ठीक है, चार वेक्टर अगर कोलिनियर डी वेक्टर तो एक और ले लो इज इक्वल टू n टाइम्स, फिर एक c माइनस डी भी कर लो, जैसे अगर एक डी वेक्टर भी है लेट्स से, ये तो c वेक्टर हो गया, मान लो कोई डी वेक्टर भी है इधर, तो c माइनस डी भी कर लो एक, सॉरी d माइनस c या c माइनस डी, जो भी फिगर के अकॉर्डिंगली लगता है, मतलब तो m इंटू a माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू d माइनस सी और c माइनस डी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ d वेक्टर। तो ये हो गया इन जनरल द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, दिस इज कंडीशन फॉर ठीक है। अरिहंत आस्क्ड कि ये पोजीशन वेक्टर कोलिनियर है या वेक्टर कोलिनियर। देखो वेक्टर को अगर कोलिनियर होना है तब तो एक दूसरे का मल्टीपल होना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो अगर पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर कब होगा, ऐसे, तो दैट केस देन दे मस्ट बी मल्टीपल, बट ऐसे जनरली पूछते नहीं, ऐसे जनरली पूछते नहीं है, पूछा जाता है उनका टिप्स कोलिनियर है, तो ये सवाल, ठीक है ना, जनरली ये पूछा जाता है। सो मैं आज की कोलिनियर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आए व्हाटएवर माइट कम, बट अप्लाई दिस यार्डस्टिक, ठीक है ना, अप्लाई दिस यार्डस्टिक। पहले फिगर बना लिया, जैसे ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो हमने ये जो वेक्टर निकाला वो है इसको पलट के, तो ट्रायंगल लॉ हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये रिजल्टेंट है, और उसके लिए ए को पलटा मैंने, इसलिए देखो मैंने लिखा है बी माइनस ए वेक्टर, तो ये वाला बी माइनस और ये वाला हो गया ए माइनस, और फिर एक दूसरे का मल्टीपल, दैट्स इट, ठीक है। ओके, और एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आ गए, अच्छा व्हाट्सएप पे भी कुछ है, गर्व से इसकी वर्कशीट के सॉल्यूशन भेज दीजिए। अच्छा वर्कशीट का सॉल्यूशन, अच्छा मैंने भेजा नहीं है क्या, सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा शायद, बट आंसर चॉइस मेरे ख्याल से होगा, एक बार फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो शायद नहीं होगा, आंसर चॉइस होगा, ठीक है ना, आंसर चॉइस भेज दूंगा फिर मैं, अभी कोई डाउट भी भेजा इट सीम्स, आंसर चॉइस में भेज दूंगा। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तो व्हाट्सएप में आया हुआ, मैं सबको बता देता हूँ, इज दैट एक पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन में मूव कर, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी v है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली, बट थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूँ, तो लाइक यू हैव आस्क्ड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं उसको थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ। ये रेडियस r है सपोज, एंड
I am supposed to find out the delta v vector after any time t. Arnav, what you have asked is कि ये velocity initial है, ये final है, बताओ चेंज क्या है. तो यानी थोड़ा सा हिंट टाइप का होगा. मैं कह रहा हूं जब मर्जी चेंज निकलवा लो. 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद, 27 सेकंड बाद, 200 सेकंड बाद, 500 सेकंड बाद, कि जब मर्जी टाइम का वेलोसिटी वेक्टर का चेंज निकालो. सो आई एम आस्किंग डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t. तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं. तो मैं एक काम करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि थोड़ी देर बाद मान लो वेलोसिटी हो गया v और ये एंगल सपोज है थीटा. यानी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था और थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा चेंज हो गया, लाइक इट हैज स्वर्व्ड बाय एन एंगल थीटा. दैट्स व्हाट द केस इज गिवन. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया इधर? तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया होगा? चलो ये तो हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये फाइनल है v और ये हो गया. अभी जो थीटा है, तो थोड़ा रियलाइज करो कि ये जो एंगल है ना, ये भी तो थीटा ही होगा ना. क्यों? ये देखो रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता तो ये 90 हुआ. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा. और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो देखो अगर ये 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा? ये थीटा होगा. दैट मींस ये जो एंगल है ये हो गया थीटा. यानी ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या है? फाइनल वेलोसिटी. ये देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो यहां रखते हैं. ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला. तो ये रिजल्टेंट आ गया. दिस इज व्हाट इज डेल्टा v. दिस इज v फाइनल, दिस इज माइनस ऑफ v इनिशियल, है ना. ये v फाइनल हो गया, v इनिशियल हो गया, और ये हो गया डेल्टा v वेक्टर. अब डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, क्या आएगा? क्वेश्चन में एक्चुअली ना ये पूछा, तो क्या आएगा ना? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट. ये हो जाएगा 2v स्क्वायर और 2v स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा. सर तो 2v स्क्वायर है तो रूट 2v कॉमन लेकर बाहर निकाल सकता हूं, और 1 प्लस कॉस 180 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा. अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है ना? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज व्हाट? 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो बाहर जाएगा तो क्या होगा? यानी ये बन गया बेसिकली रूट 2v इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो वो रूट 2 साइन थीटा बाय 2 और एक रूट 2 है. यानी फाइनल आंसर हो गया 2v साइन थीटा बाय 2. दैट इज द आंसर. ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एक इशू है. यू माइट से थीटा तो पता नहीं, थीटा पता चल जाएगा कैसे. तो देखो अगर ये स्पीड v से जा रहा है, इन दैट केस व्हाट इज दिस आर्क लेंथ? ठीक है, होगा v into t और रेडियस. तो थीटा विल बी इक्वल टू vt which is the arc length upon the radius. क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियंस में जो एंगल होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो आर्क लेंथ क्या होगा? स्पीड v से जा रहा है तो v into t इज आर्क लेंथ और रेडियस r है, तो ये हो गया थीटा. तो थीटा बाय 2 क्या होगा ना? vt by 2r, है ना. ये vt by 2r. एक काम करें, तो इन दैट केस अब मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं. तो फाइनल आंसर इज फाइनल आंसर इज 2v sin थीटा बाय 2 और थीटा की जगह vt by r. यानी फाइनल आंसर हो गया 2v sin vt by 2r. दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है, और ये वाला तो है ही भाई. सर इसमें टी को टाइम लिया ना आपने? हाँ, टी इज टाइम. टाइम बाद. हाँ, कितने टाइम बाद होगा. तो हाँ, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आफ्टर टाइम, तो उसका कैलकुलेशन किया. ठीक है, तो वो टी निकाल लिया. टी नहीं निकाला, सॉरी टी दिया होगा, तो उसके बेसिस पे आंसर निकाल लिया. कुछ इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस आए हुआ है ना.
I don't know whether I should take. अंश ने भी ये पूछा है कि was that a worksheet of mathematics? वो तो मैंने पहले ही बोला कि जितने भी मैथ्स वाले चीजें हैं ना, वो सारा मैंने मैथ्स के बुक से ही दिया वैसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते ही नहीं, मतलब फिजिक्स के बुक में मिलते ही नहीं। अच्छा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन भी था, अंश ने अभी पूछा है, तो मे भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, वैसे इतना भी रेलिवेंट नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग क्लास 12th में करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो कर देते हैं। बाय द वे एक और मैं चीज बता देता हूँ, जो कि ये फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं, बट देखना मैथ्स में तुम लोग क्लास 12th में सीखोगे, मैं थोड़ा सा पहले से बता देता हूँ, इज दैट कि कोई भी जो प्लेन होता है ना, कोई भी जो प्लेन होता है, उस प्लेन को रिप्रेजेंट करने का एक वेक्टर होता है, और वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब मान लो एक इंसिडेंट रे आया है, ऐसे करके एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये हो गया सपोज, थोड़ा टेढ़ा कर दो, सर ये थीटा वीटी अपॉन आर कैसे आया? हाँ ये बता। वो एक्चुअली पता क्या ना, देखो थीटा होता क्या, पहले बार वो समझो। कोई भी अगर जनरल केस लेते हो ना, तो अगर ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, तो अगर ये आर्क लेंथ है एल और अगर रेडियस आर है, इन दैट केस थीटा क्या होता है, एल बाई आर, है ना। तो अगर मेरा स्पीड v है, तो मैं अगर टेढ़ा मेढ़ा भी ट्रेवल करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मेरा स्पीड v है, स्पीड ध्यान रखना, स्पीड अगर मेरा स्पीड v है, तो अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा भी ट्रेवल करूंगा, तो डिस्टेंस तो मुझे पता है, वो है vt। डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट आई डोंट नो, दैट आई एग्री, क्योंकि वो तो पता नहीं, सीधा जाओगे तो अलग होगा, सर्कल में जाओगे तो अलग होगा, टेढ़ा मेढ़ा इलिप्स में जाओगे तो अलग होगा, तो अलग अलग, बट डिस्टेंस तो मुझे पता है, दैट इज vt। तो यानी ये जो आर्क लेंथ है वो क्या हो जाएगा, vt, और रेडियस क्या होगा, r है, वो तो पहले से दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ vt बाई r, दैट इज द एंगल थीटा, और ये थीटा इन रेडियंस होता है। और हायर मैथमेटिक्स में, यानी द मैथमेटिक्स दैट यू आर नाउ सपोज्ड टू डू इज कॉल्ड हायर मैथमेटिक्स, उसमें डिग्रीज में एंगल को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी डिग्री इज नो मोर अन यूनिट ऑफ एंगल फॉर यू, फॉर यू ऑल द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस एंड रेडियंस मोड, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, तो लाइक लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट एंगल, और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ2 है, तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ एक्चुअली? स्नेल्स लॉ इज sin i by sin r, है ना, sin i by sin r is equal to μ1 by μ2। तो कई बार इसको म्यू भी बोला जाता है, क्योंकि म्यू इज डिफाइंड एज ओ, मैंने गलत किया, मैं सोच रहा हूं दिस इज μ2 by μ1, दिस इज म्यू, तो ये हो गया, यानी बेसिकली sin i by sin r is equal to म्यू, तो ये i है, ये r है। अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि आई अगर ले तो ये इंसिडेंट वेक्टर में दिक्कत है, तो इसको अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, इसको साइन अल्फा साइन बीटा, राइट, so that is what is called as Snell's law, this is Snell's law। अब मैं काम करता हूँ, कुछ यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर्स। पहला यूनिट वेक्टर है, सपोज दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, so this is n cap, और लेट अस से दिस इज इंसिडेंट रे वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, सपोज i cap, ये i कैप लेकिन वो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर नहीं है, आई ये भी आई है, 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 तो यानी एनी इंसिडेंट रे इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो हो गया आई कैप।
ठीक है, और ये जो है ये हो गया सपोज आर। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे ये अल्फा निकालना तो कैसे निकाल, है ना? तो अल्फा निकालने का तरीका होगा, यानी साइन अल्फा निकालने का तरीका होगा आई क्रॉस आर बाई मॉड आई मॉड आर, है या नहीं? सिमिलरली साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा आर क्रॉस लेकिन ये बीटा ये है तो लाइक आर क्रॉस माइनस एन, अगर ये एन होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एन। ये तीनों यूनिट वेक्टर से ध्यान रखना, इफेक्ट्स यूनिट वेक्टर में नहीं दिया इसको, वो बेटे अपना माइक्रोफोन बंद करो, हाथ चेक कर। हाँ तो अगर मान लो यूनिट वेक्टर नहीं दिया तो, अगर वेक्टर दिया तो कोई बात नहीं, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है नहीं? तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, है ना, आर क्रॉस माइनस एन बाई मॉड आर मॉड सर सर हाँ बेटे, सर साइन अल्फा का वैल्यू कैसे आया? सर आई क्रॉस एन नहीं होना चाहिए था। हाँ आई क्रॉस एन ही है, अच्छा ना लिख दो, ठीक है, आई क्रॉस एन और मॉड आई मॉड एन, और ये हो गया आर क्रॉस माइनस एन बाई मॉड ऑफ माइनस आर और मॉड ऑफ एन, हो गया। अब ये इस पे पुट कर दो अल्फा, फिर अब क्या है ना कि देखो ये जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो इस पे भी मॉड करना, इस पे भी मॉड। तो अब देखो ये जो है ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो therefore I can easily say that sin alpha by sin beta, यानी मैं लिख सकता हूँ sin alpha by sin beta is equal to I cross n का mod by, ये तो 1 1 1 1 1 सब खत्म हो जाएगा, r cross mod n, ठीक है, r या सिंपली अगर मॉड ही लिखना है तो r cross n n cross r लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, r cross n भी मैं लिख सकता हूँ। या बेसिकली इसमें एक यूनिक चीज क्या होगा ना, n वेक्टर, n वेक्टर इज व्हाट, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, ठीक है ना, जो इंसिडेंट प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर, दैट्स द प्लेन। सर हाँ बेटे, सर आई कैप और एन कैप के बीच के एंगल 180 माइनस अल्फा नहीं होगा, मतलब अल्फा क्यों है सर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, एक्चुअली शायद मैंने क्या किया, मैंने हाँ 180 माइनस है, तो इसको भी माइनस कर लो, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ये तो आई है ना, तो इसको भी माइनस कर लो, ठीक है ना, यानी माइनस आई कॉमा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, देखने में कुछ नहीं आता, ठीक है, माइनस आई और एन वेक्टर, ठीक है ना, सही बोला, ठीक है, एग्री। अब वो दिस स्मॉल थिंग्स यू कैन एडजस्ट, आई मीन मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि मॉड लगा रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, और ना ही आई ले रहे हो माइनस आई ले रहे हो, उतना इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है ना, सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्रेस थ्रू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारे हैं, व्हाट टू डू, जैसे ध्रुव हैज आस्क्ड कि क्या वेक्टर का वर्कशीट क्लास 12th वाला है, एक्चुअली ना ये जो वेक्टर का टॉपिक मैथ्स में है ना, ये 12th में ही है, तो देयरफॉर जो भी वर्कशीट मैंने लिया है वो कोई 12th की बुक से लिया हो, है ना, तो काफी दिन हो गया पता नहीं है ना, बीच बीच में ढूंढते रहते तो कुछ मिल जाता तो मैं ले लेता हूँ, एंड देन आई पुट इट इन द ग्रुप, मैं उसका आंसर्स भेज दूंगा, एक बार देख लेंगे, ठीक है, पर देखो लर्निंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, डोंट वरी। वेक्टर वर्कशीट का और भी आया हुआ है 67 69 वगैरह, आई डोंट नो आज कितना करने का टाइम होगा और कितना करने का जरूरत है, ये भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम और भी है, दैट इज और भी क्वेश्चंस आए, वैसे मैं देख रहा हूँ कौन से ले कौन से नहीं।
आपको वेक्टर असाइनमेंट्स मिला मुझे। हाँ देखो ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉज एंड ऑल, तो दोज यू कैन लीव, अभी इतना कोई जरूरी नहीं। एक्चुअली पता क्या है ना, जितने भी हम लोगों ने ज्योमेट्री में सीखा है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, दिस दैट, है ना, फिर इन सेंटर, फिर सर्कम सेंटर, इन सब के ना वेक्टर के टर्म्स में भी डेफिनेशंस है। अब वो सब तो देखो हम लोगों ने ना पढ़ा और ना ही फोकस किया हमने, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चंस अभी फिलहाल रहने, ठीक है ना। बट यस देयर आर वेक्टर, जैसे एक सिंपल वाला मैं बता देता हूँ, बस उतना अभी नॉलेज रखो, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज दैट वुड बी लाइक स्ट्रेचिंग टू फार। वैसे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना, इन सब पॉइंट्स के भी वेक्टर फॉर्मूले हैं, बट देन एज आई सेड वी हैव नॉट डन इट एंड नाइदर डू वी नीड टू डू इट। बस एक रख लो, दैट इज मीडियन, ठीक है ना। तो मीडियन का तो वही होगा कि जैसे अगर कोई ट्राइंगल है मान, राइट, जैसे ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, और हो गया सपोज सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट। तो लाइक दिस आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसके दिया हुआ है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इन दैट केस जो मीडियन वाला वेक्टर बनेगा, है ना, so that median will be equal to a vector plus b vector plus c vector by 3। बस अभी इतना ही नॉलेज है। अब बाकी पॉइंट्स के तो और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस है, इन द सेंस कि उसके फिर और डेरिवेशंस भी है। आई थिंक उतना ही बहुत है ना, लेट्स नॉट स्ट्रेस बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वेक्टर के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत ना वैसे वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि यू नो ट्रायंगल के अलग अलग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से मुझे भी दिख रहा है ना। तो मे बी सम ऑफ देम यू कैन लीव हिम, इतना कोई जरूरी नहीं है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। एक और है अरियन जेंसेन, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज -4 i cap -4 j cap एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। Find the quadrant in which the particle is moving if its motion is clockwise and anti-clockwise, ठीक। तो इसका मैं देख लेता हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और सर्कल में मूव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म्स में है, यानी दैट सर्कल इज इन द एक्स वाई प्लेन, दैट्स द कंक्लूजन। और उसके बाद देखते हैं और क्या बता रहे हैं। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दिया हुआ, ठीक है, दैट वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन एज -4 i cap -4 j cap। तो v वेक्टर दिया हुआ है -4 i cap -4 j cap, और बोल रहे हैं ये ना एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, क्वाड्रेंट पूछा है, ठीक है। -4 i cap मतलब क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है ना, तो इज बेसिकली अ थर्ड क्वाड्रेंट वेक्टर। तो सर्कुलर मोशन में अगर मैं मान लो क्लॉकवाइज लेता हूं, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज अगर होता है तो इन दैट केस क्या होगा, क्लॉकवाइज अगर होगा तो यहाँ पे यानी क्लॉकवाइज मींस ऐसे जा रहा है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज। और एक और बना देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड देन लेट्स टैली इट विद द वेलोसिटी जो गिवन, ठीक है, जो गिवन है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रहा है दैट इज लाइक दिस, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ यू माइट से, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर नहीं पूछा, वेलोसिटी वेक्टर पूछा। तो अगर मान लो इसका वेलोसिटी देखोगे तो ये कौन सा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रहा है वो है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ का जो वेलोसिटी है दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज क्वाड्रेंट का ध्यान दो,
दूसरा केस में क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला, ये जो वेलोसिटी है ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो वेलोसिटी है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जो वेलोसिटी है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आर्यन नाउ यू विल गेट द आंसर। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। सर कोऑर्डिनेट्स असाइन कैसे किए एक बार दोबारा बता दो। एक्चुअली डायरेक्शन को देख के, जैसे ये जो क्लॉकवाइज है इस समय अगर वेलोसिटी देखो तो क्या होगा, ऐसे करके होगा, है ना, क्योंकि सर्कल में जो वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल, और टेंजेंट एक सर्कल पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट इधर भी होता है उधर भी होता है, तो वो सेंस ऑफ मोशन से पता चलता है। जैसे अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो यानी पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये वेलोसिटी हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी हो गया। अब देखो ये जो वेक्टर होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है ना, खुद सोच के देखो, कंपेयर कर लो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वेक्टर हुआ, है ना, ये थर्ड का हुआ, और ये फोर्थ का हुआ। तब टैली करो, ये वाला वेक्टर देखो और ये वाला वेक्टर देखो, टैली कर रहा है ना, इसके फोर्थ। ये वाला वेक्टर देखो और ये वाला वेक्टर देखो, टैली कर रहा है ना, इसके फर्स्ट। ये वाला वेक्टर देखो और ये वाला वेक्टर देखो, टैली कर रहा है ना, इसके सेकंड, एंड सो ऑन। तो जहां जहां जो जो वेलोसिटीज है मैंने सारा चॉक आउट करके दिखा दिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके से मोशन हुआ। ठीक है, नाउ आई थिंक यू कैन योरसेल्फ गेट द आंसर। ठीक है, सोम ने भी कुछ कुछ पूछा है, 31 32 नहीं 31 32 35 आंसर जस्ट देना पड़ेगा, समझ लो। ठीक है ना, 32 इसमें क्वेश्चन आया हुआ दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, तो I प्लस जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं एक आध कर देता हूँ, पता नहीं इतने करने का टाइम तो होगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आउट में आ गए, तो उसमें मेरे फोन पे चार्ज भी कम है। ये हो गया I प्लस 2J प्लस 3K, तो बोल रहे I प्लस 2J प्लस 3K, लैम्डा I प्लस 4J प्लस 7K, लैम्डा I प्लस 4J प्लस 7K, and minus 3I minus 2J minus 5K, तो minus 3I minus 2J minus 5K। ठीक है ना, और कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर, देन लैम्डा इज इक्वल। ये काम करते हैं, क्योंकि देखो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना कि मान लो 3 वेक्टर्स है ऐसे करके और कोलिनियर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस कर लेते हैं, सॉरी ये तो हाँ, ये दोनों को माइनस कर लेते हैं, इन दैट केस मिलेगा 4I कैप फर्स्ट और थर्ड, और 2 और 2 यानी 4J कैप, और 3 प्लस 5 यानी 8K कैप, ये दोनों माइनस करके मिल रहा है। ठीक है, और क्या ना, इसका हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा I कैप प्लस 2 माइनस 4I कैप यानी माइनस 2J कैप। ठीक है, माइनस 4K कैप। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड ये। अच्छा हाँ, बाय द वे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहे कि ये प्रूव करो, फाइंड लैम्डा, क्वेश्चन इज फाइंड लैम्डा फॉर कोलिनियरिटी। तो जो मैंने क्लास के एकदम स्टार्टिंग में समझाया था वही क्वेश्चन है, क्यों, देखो लैम्डा फॉर कोलिनियरिटी के लिए मैंने क्या किया, वैसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट आई एम टेकिंग द फर्स्ट थर्ड, क्योंकि वो तो इसमें कोई लैम्डा लैम्डा नहीं है, बाकी में तो लैम्डा है, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा बाद में सोचा अवॉइड करा। तो फर्स्ट और थर्ड को माइनस करके मुझे ये मिल रहा है, और फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके मुझे ये मिल रहा है। अब अगर कोलिनियर होना है तो दैट किसके होगा, एक दूसरे का मल्टीपल होना पड़ेगा। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसको मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस हाफ से, यानी माइनस हाफ से मल्टीप्लाई, तो यानी 4 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया -2,
8 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया -4, यानी 4 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस लैम्डा आना चाहिए। therefore 4 into 1 minus lambda, sorry, 4 into minus half must be equal to 1 minus lambda, ठीक है ना। यानी -2 is equal to 1 minus lambda, है ना। तो लैम्डा आ गया 3, तो therefore लैम्डा आ गया 3। ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, लैम्डा इधर जाएगा 3, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 3। I hope by now you must have got a little bit of hint about the collinearity, क्योंकि एक्चुअली मैं लगातार मैं 8-10 दिन से देख रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप में भी कई मैसेज आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी बार बार पूछ रहे हैं, तो कोलिनियरिटी को लेके थोड़ा सा लगता है मुझे अभी भी डाउट है, डर है। आई होप ये क्वेश्चन लगभग कोलिनियरिटी वाला पार्ट को क्लियर कर रहा है, होपफुल, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ बाकी अगर अच्छा चलो ठीक है, एक बार और वो कर देता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद वाला भी वही था लेकिन 32, ठीक है। तो अगला जो है ना वो वही है, एक बार बोलना कि ये क्वेश्चन बोलना 32 वाले में a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस ए बी आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो पहले दोनों को माइनस कर लो तो एक वेक्टर मिलेगा, है ना, और सेकेंड और थर्ड को माइनस करो तो भी एक वेक्टर मिलेगा, और वो दोनों जो है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ ईच अदर आना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स द वे टू डू इट। या एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड ले लो और सेकंड और थर्ड ले लो माइनस करके, और एक दूसरे का मल्टीपल आना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। तो यानी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है हमें, ठीक है ना। वेक्टर वर्कशीट 2 क्वेश्चन 75, एक्चुअली यू आर नाउ गोइंग ऑन दिस लास्ट वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देख लो, मैंने इनका इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट के तो आई थिंक 15-20 क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद इतना जरूरी नहीं है, सब इन सेंटर है ना, और वो सब चीजें पूछ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स हैव बीन आस्क्ड अगेन, तो उनको तो हम छोड़ सकते हैं। एज आई सेड दैट ट्रायंगल पे इतने डिटेल में मत जाओ, क्योंकि एक्चुअली ना इस चैप्टर के थ्योरी में जो हमने कवर नहीं किया, ये तो 12th का चैप्टर है मैथ्स का, इसके चैप्टर के थ्योरी में सारे अलग अलग फॉर्मूले, जैसे मैंने बोला ना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये वो, प्लस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, फिर पर नॉर्मल, इन सब के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो अनलेस दोस फॉर्मूला आर देयर, तो ये बाकी क्वेश्चंस करने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए उनको छोड़ दो, दोस आर लिटिल आउटसाइड है, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक और देख लेता हूँ मैं, ये भी एक डाउट आया है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी कुछ उसी तरीके का ही है, थोड़ा बड़ा होगा, बस इतना ही है। दैट इज 38। तो 38 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 38 सर, 38, तो 38 वाले क्वेश्चन में क्या है, उसी सीक्वेंस में है, मतलब ये तो शायद मैंने 32 या कोई एक कर के दिया था शायद, ये कई बार कोलिनियरिटी बार बार आ रहा था तो मुझे लगा चलो एक क्वेश्चन कर ही देते हैं। वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था आज क्लास के पहले ही, और शायद एक दिन और भी बताया था, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया। 38 में बोल रहे हैं कि XYZ नॉन जीरो है ना, 0 0 नहीं है, और I प्लस J प्लस 3K इंटू X प्लस 3I माइनस 3J प्लस K इंटू Y माइनस 4I प्लस 5J इंटू Z is equal to lambda into X plus Y plus Z. Sorry.
xi cap plus yj cap plus z k, ठीक है ना? तो ये चीज है, ठीक है. तो what you have to do is that in this case what you have to do is that एक काम करो, i cap को अलग से लिखो, प्लस j cap को अलग से लिखो, प्लस k cap को अलग से लिखो और इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि सारे इकट्ठे ले लिया मैंने, i cap j cap k cap, i cap j cap k cap, i cap j cap k cap, i cap j cap k cap एक में नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके. अब ये सारे इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? दैट मींस इंडिविजुअली ये भी इक्वल टू 0 होगा, इसका भी वैल्यू इक्वल टू 0 होगा और इसका भी वैल्यू इक्वल टू 0 होगा. Write down the three equations and then solve. आइडिया क्लियर होगा ना क्या हो रहा है? यानी i कैप को अलग से 0 करो, j कैप को अलग से 0 करो, k कैप को अलग से 0 करो. चलो कलेक्ट ऑल द टर्म्स. जैसे इसमें हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 4z माइनस लैम्डा x, एक इक्वेशन बन. फिर दूसरा हो जाएगा j के लिए x, j वाले के लिए x माइनस 3y, इसमें तो j है नहीं, माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0. इस तरीके से क्या होगा ना, 3 इक्वेशन होगा एंड देन वी सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. दैट्स द थिंग, ठीक है ना? फिर एक बार सॉल्व कर दो. अच्छा, पूरा एंड तक, क्योंकि इसमें ना चॉइसेस पूछा है, मतलब कि लैम्डा का क्या वैल्यू हो सकता है ना? कौन सा कर रहा था? 38. देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा कुड बी. तो व्हाट यू कैन इजीली डू इज दैट, वंस यू राइट द इक्वेशंस, फिर एक बार लैम्डा को वैल्यू चेक करके देख लो कि वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाय पुटिंग लेट्स से -2 0 0 -2 -1 0 एंड 0 -1. तो वैल्यू जैसे पुट कर तो इक्वेशन वैलिड हो रहा है या नहीं वो चेक हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इक्वेशन कंसिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि x y z 0 नहीं है, यानी इनके प्रॉपर वैल्यूज है ना? तो 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के लिए यू कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना? मालूम है ना, जैसे तुम लोगों ने क्लास 10th में किया ना, कि अगर 2 इक्वेशंस को वैलिड कराना है तो इन दैट केस क्या होगा? a1 by a2 should be equal to should not be equal to b1 by b2 and all those things. So from that you can easily get the value of lambda. ठीक है? The equation के actually basically is asking on equation के it's basically asking on consistency of equation. That's the point. ठीक है? एक बार ट्राई कर लो ऋषभ. तब तक मैं जो है 39th भी देखता हूँ क्या है. ये भी सेम ही क्वेश्चन है ना? यानी हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p. ठीक है? सिमिलरली क्वेश्चन है 13th का, 39th भी. 39th में भी देखो क्या ना, 3 वेक्टर्स दिया हुआ. अब मैंने कल भी शायद कल या जब भी हो पिछले बार भी समझाया था शायद, एंड दैट इज कि अगर 3 वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, सॉरी डिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि MA प्लस MB शुड बी इक्वल टू C. बस दैट्स इट. अब क्योंकि वेक्टर i कैप j कैप और k कैप के टर्म्स में, इसलिए एक i कैप का अलग इक्वेशन बनेगा, j कैप का अलग इक्वेशन बनेगा इसी टर्म्स, है ना? और k कैप का अलग इक्वेशन बनेगा. फाइन. एंड देन एलिमिनेट m and n and you will get some value of lambda. That's the motivation. ठीक है ना? दे हम एक बार ट्राई करो 39. तो इसमें क्या है कि जैसे a b c वगैरह दे रखा है 3 वेक्टर्स, तो इन दैट केस क्या करेंगे ना, इसको लिखो पहले, और फिर i कैप को इक्वेट करके, j कैप को इक्वेट करके और k कैप को इक्वेट करके राइट डाउन 3 इक्वेशंस. फाइन. एंड दैट विल गिव यू द आंसर. इसमें अननोन हो गया m n और एक कुछ लैम्डा या कुछ k दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन. तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन सॉल्व तो हो ही जाएगा. इज़ इट? वो चेक कर लो. गर्भ has asked another question is that वो जो कोलिनियरिटी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो,
देखो कोलिनियरिटी में सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है। जैसे 3 वेक्टर मैंने बोला था ना, अब तो क्या मिटा दिया, तो काफी पहले हो गया था। उसमें मैंने ए बी और मैंने शायद बीसी का पेयरिंग किया था, है ना, कि ए बी बी और बीसी, तो यानी एक मैंने लिया था शायद a माइनस बी और दूसरा था शायद b माइनस सी, और फिर मैंने बोला कि a माइनस बी मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ b माइनस सी। मैंने ऐसे ही बोला था ना। तो उसमें जरूरी नहीं कि a b और b c का पेयरिंग, तुम कोई सा भी 2 पेयरिंग कर सकते, ठीक है ना, जैसे a b और a c वो भी चलेगा, समझे ना। तो दैट्स अप टू यू। तो देयर इज नो फिक्स्ड कि इन दोनों का पेयरिंग करना। तो a b b c a b a c इस तरीके से जो पेयरिंग तुमको करना है वो कर सकते हो। तो उसको करके जो 2 वेक्टर्स बनेंगे पेयरिंग करके, मतलब माइनस करके, वो एक दूसरे के यानी आपस में मल्टीपल होने चाहिए। दैट्स द फंडामेंटल क्राइटेरिया। दैट वाज आस्क्ड बाय एक्चुअली गर्व, ठीक है ना। गर्व हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन हमें। चलो ठीक है। ऑडियंस ने कोई यूनिट डायमेंशन का भी क्वेश्चन पूछा। अच्छा चलो चेक करता हूँ, क्वेश्चन बहुत आ गया एक्चुअली, कुछ उतना रेलेवेंट नहीं है एंड ऑल, बट चलो ठीक है। देखो as far as dimensionally correct equation is concerned, ये देखो इसमें इश्यू पता है क्या आ जाता है, इज दैट ये जो इंटीग्रेशन का जो मैनिपुलेशन है ना, तो इसमें यू नो जैसे अभी अगर ये देखोगे तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन। ये तो dx का भी एक डायमेंशन होता है, समझ ना, dx का भी एक डायमेंशन होता है और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी डायमेंशन होता है। तो ये चीज है। तो लाइक when we do manipulations which will give a result which is different, तो उसमें इस तरीके से डायमेंशनल चेकिंग हम नहीं करते। ठीक है ना। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायमेंशंस वाले, जैसे सपोज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ले लो, साइन ऑफ समथिंग, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। बट ये तो आफ्टर मैनिपुलेशन, so like this integration is actually manipulation, so therefore the quantity will actually change after integration, ठीक है ना। therefore everything is valid dimensionally, it is just that कई बार फ्रंट में नहीं दिख रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशन करके यू नो मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। so therefore you cannot equate the integration dimension with the right hand side, ठीक है ना। तो इसलिए उस पे डायमेंशन एनालिसिस हम लोग नहीं करते। फाइन। एक और भी आया हुआ है ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये आया हुआ है पता किस चीज का, और उसका क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम इसको मैं थोड़ा जनरलाइज ही कर देता हूँ, एंड दैट इज क्या किया जाता है कि एक ना स्क्वायर शीट लिया, कोई एल लेंथ का कुछ शीट है, एल लेंथ का कुछ शीट, और फिर क्या क्या करते हैं हम लोग ना, कुछ एक्स लेंथ का हम लोग शीट कट कर लेते हैं चारों तरफ से, ऐसे कर, और फिर पता क्या करते हैं, इनको फोल्ड कर देते हैं, इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड x so that the volume of the folded structure is maximum, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर का वॉल्यूम पहली बात तो होगा कितना, उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, है ना। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना होगा उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो क्या होगा
इसका हो गया L माइनस एक्स, तो ये हो गया बेस, है ना, ये हो गया बेस, बेस क्या होगा L माइनस 2x, है ना। तो जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो जहां पे ये हो गया L माइनस 2x और ये हो गया x, और ये भी वही है, ठीक है ना, और ये x हो गया। तो यानी जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा L माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर तुमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, देहम उस ट्रिगोनोमेट्रिक के हिसाब से एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया, दैट इज कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। तो मैं उसका आंसर कुछ इस तरह से देता हूं, इस दैट एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस कॉस टैन वैन कुछ भी होता है, उसके ब्रैकेट के अंदर का जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर का क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस होगा, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। चलो एनीवे इसको करते हैं, तो लाइक इसके बाद क्या होगा ना, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू L माइनस 2x, ठीक है ना, इंटू माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन इंटू x, ठीक है, प्लस L माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर इसको इक्वल टू 0, क्योंकि L माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन हो तो 1 आएगा, है ना, तो 1 हो गया इंटू 1, तो लिखा ही नहीं, तो इसको इक्वेट करके नाउ फाइंड x, देन वॉल्यूम, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड बाय आई थिंक श्रेयसी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम ऋषभ, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं एक काम करूंगा ना, जो वेक्टर वाला असाइनमेंट है उसका मैं आंसर्स भेजूंगा, बट देन आई डोंट नो वेदर आई विल डू इट टुडे और नॉट, कई सारा काम मेरा पेंडिंग है आज, तो मैं आजकल में भेजूंगा, एंड डोंट थिंक कि उसके ऊपर कोई सीपीटी का रिजल्ट डिपेंड करता है, इफ योर बेसिक्स आर क्लियर तो सीपीटी विल बी ओके। अच्छा, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली, दैट इज फ्रॉम ऋषभ जैन, and that is angle dimensionless or and does it have a unit? देखो, angle and solid angle are two interesting quantities, पता है क्या, एंगल और सॉलिड एंगल टू इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज है। एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, ठीक है। तो एंगल और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो मैंने दे दिया, बट दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इसका मतलब, यू माइट से कि इनके तो डायमेंशन क्या बोलते हैं यूनिट है और डायमेंशन क्यों नहीं है भाई, यूनिटलेस होता तो समझ में आता, है ना। देखो इसके पीछे रीजन है, रीजन इज दैट एंगल का यूनिट आज का नहीं है, एंगल का यूनिट 2000 साल से चला, ठीक है। कायदे से एंगल का यूनिट होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आज ही हमने डिफाइन किया ना एंगल को एज आर्क लेंथ बाय रेडियस। सिमिलरली ये जो सॉलिड एंगल होता है ना, इसका होता है ये सिंबल, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया बाय आर स्क्वायर। इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। तो देखो, एंगल आर्क लेंथ बाय रेडियस डायमेंशनलेस, एरिया मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये भी डायमेंशनलेस। तो देयरफॉर ये दोनों क्वांटिटीज डायमेंशनलेस तो है, समझ ना, डायमेंशनलेस तो है, लेकिन इनके यूनिट्स है। अच्छा, ये दो एक्सेप्शनल चीजें हैं। नाउ यू माइट से यूनिट है, डायमेंशन कैसे नहीं होगा? द आंसर इज दैट ये दोनों पे साइंटिस्टों ने एक्सेप्शन का मोहर लगाया। उसके पीछे रीजन इज दैट, देखो, the way angle was initially defined 2500 years back was different, कि कितना स्प्रेड है ऐसे, तो उसका मेजर है ना, इस तरीके से, तो therefore there was a unit set। बट आज के दिन में जिस तरीके से एंगल का डेफिनेशन दिया गया है वो भी स्प्रेड को ही डिफाइन कर रहा है, पर उसके लिए कोई डायमेंशन का जरूरत नहीं पड़ता, डायमेंशनलेस यूनिट, क्योंकि 2000 साल पहले से चला आ रहा है, इसलिए उसको फॉर कंटिन्यूटी से रखा गया।
अदरवाइज एक्चुअली देखा जाए तो एंगल का कोई यूनिट का जरूरत नहीं, पर ठीक है चलता आ रहा है तो इट्स फाइन। हमें दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस बट हैज यूनिट, और ऐसे सिर्फ दो ही क्वांटिटी के साथ हैज यूनिट्स, rather have unit. So these two quantities, angle and solid angle, they have unit but no dimensions. Okay. So I think we're just running out of time. I mean, just before we wind up, I mean, just for tomorrow, I mean, be relaxed, be cool. But जो तुम लोगों को रूल्स समझाया गया था वो अच्छे से करना, इन द सेंस कि व्हाइट शीट में और जैसे अपना नाम वगैरह सब ऊपर लिख के एक पार्टीशन बना के आंसर चॉइस लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो लाइक लेट्स से अगर 1A 2B 3C 4D कर रहे हो तो इन दैट केस नहीं मिलेगा। आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1A पॉजिटिव, 1B वेक्टर, 1C along the direction of this, जो भी उसके चॉइस के हिसाब से वो है। हाँ, अगर एक चॉइस कोई बहुत लंबा चॉइस है, बड़ा चॉइस है, बड़ा सेंटेंस, तो मे बी इन दैट केस जो रेलिवेंट पार्ट है उसको लिख, उतना चल सकता है। बट 1A 2B 3C पे नंबर नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन एंड में नहीं हो पाता तो एटलीस्ट यू कैन मार्क दैट, सो दैट उसमें जो तुक्के का वैल्यू होता है ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है, एटलीस्ट दैट मच इज देयर, ठीक है ना। इट्स नॉट टू सजेस्ट कि तुक्का मार दो, बट इट्स जस्ट दैट if some of you decide कि I won't mark anything other than what I am able to solve and some others do, तो वहां पे थोड़ा सा injustice हो जाता है, और कोई बात, ठीक है ना। ध्रुव has asked कि क्या कोई क्लास भी होगा। देखो दो चीजें हैं, अगर कल फिजिक्स क्लास होता है तो इन दैट केस वी विल डिस्कस दी सीपीटी, और अगर कल नहीं होता है लेट्स से बाय चांस, तो इन दैट केस परसों डिस्कस करेंगे, व्हाटएवर इट हैपेंस, आई डोंट नो। तो वो तो शेड्यूल आएगा तो मुझे भी पता चलेगा, इवन आई डोंट नो क्लास होगा या नहीं। इसमें एक सवाल आया ARL क्या है। अच्छा, ये तो आज ही बताया था बेटे, L इज द आर्क लेंथ, ये वाला। और ये जो है ये सरफेस एरिया होता है, लेकिन सरफेस एरिया जो मर्जी नहीं होता है, थोड़ा स्पेसिफाइड होता है, तो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ आज, अभी टाइम नहीं होता, इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये ए एरिया है, इसका मीटर स्क्वायर यूनिट है, और आर स्क्वायर वो भी मीटर स्क्वायर है, तो कट के कोई डायमेंशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट हैज नो डायमेंशन, बट इट डज हैव अ यूनिट एंड दैट इज स्टेरेडियन, दैट इज ओनली फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। So I think that's it for today. We will meet again tomorrow during the CPT. ठीक है, बेस्ट ऑफ। हाँ बेटे, सर एक और क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है, प्लीज वो सॉल्व कर दो एक लास्ट। अब तो छोड़ दो, अब तो क्लास का टाइम हो गया, तो मैं उसको ना तुमको वैसे रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है ना। Who is that? श्रेयसी। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन तो मैंने किया अभी शायद, ये वाला, ये तुम्हारे वो क्वेश्चन वाला नहीं, एक वेक्टर्स का है। अच्छा, एक और भी है, चलो कोई बात नहीं, वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द फर्स्ट सीपीटी। बी रिलैक्स्ड एंड कूल, डोंट गेट पैनिक, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड आल्सो द लास्ट, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक टुमारो, चलो बाय बाय।